हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो है वीडियो ऑन द टॉपिक एंजाइम्स एंड दिस इज द लास्ट लेग ऑफ द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल सच में एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, राइट? नाउ आज के इस वीडियो में हम एंजाइम्स, इट्स डेफिनेशन, मोड ऑफ एक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, factors that affect the functioning of enzyme, classification and types of enzyme and components of enzyme देखेंगे. Okay, and at the last we will go through some very basic MCQs regarding enzyme. तो शुरू करें. Now enzyme शुरू करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं what is metabolism. Metabolism, you all know, metabolism is the sum total of all the chemical reactions that are taking place in a living organism. Yeah, you can say in a living cell. जो सिंथेटिक और मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो तरीके के होते हैं. The one which synthesizes products are called anabolism, and the one which breaks the substrate to give products are called catabolism, right? And the chemicals or the molecules which are participating in this process of metabolism are called the metabolites. और यही जो रिएक्शन होता है हमारे लिविंग सेल में, इनको कैटालाइज कौन करता है? दे आर द एंजाइम्स. सो व्हाट आर एंजाइम्स? So what are enzymes? They are organic molecules क्योंकि उनका नेचर ऑर्गेनिक है. बायोकैटलिस्ट. Organic molecules, biocatalyst that catalyze reaction in a living being. Organic है, biocatalyst है. Then what is inorganic catalyst? कोई ऐसा इनऑर्गेनिक चीज है जो रिएक्शंस कैटालाइज करता है? यस, ऐसे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऐसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं which also catalyze the reactions, but they are not enzymes. तो enzymes और inorganic catalyst में फर्क क्या है? Enzymes occur in a living system. Inorganic catalyst they do not occur in living system. Okay? इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस है जो मैं आपको अभी दिखाती हूं. Here, if you see, enzymes are organic in nature, they are inorganic nature. Almost all enzymes are proteins, whereas inorganic catalysts are usually small, simple molecules such as nickel and platinum. Enzymes occur in living cells, they do not occur in living cells. Enzymes are highly specific in action, यानी one enzyme, one molecule. ऐसा नहीं होता कि एक ही एंजाइम 10 तरह के रिएक्शंस कैटालाइज कर रहे हों. दे आर हाईली स्पेसिफिक देयर. वहीं पे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट्स आर नॉन स्पेसिफिक इन एक्शन, यानी एक 10 का काम कर सकता है. ओके? Enzymes get damaged or denatured at high temperature, while inorganic catalysts work efficiently at high temperature. यहां पे एक एक्सेप्शन है, अभी बताने वाली हूं. Enzymes are very high in efficiency. Inorganic catalysts are comparatively less efficient. Okay? अब इस वाले पॉइंट पे अगर आए
So most of the enzymes are made up of protein, and proteins get denatured at high temperature. So usually for most of the enzymes, temperature between 40 to 45 degrees Celsius, इसके बाद enzymes become denatured and they do not work. Exception to these are the enzymes that are extracted from thermophilic microorganisms. Microorganisms thermophilic कौन से वाले हैं? The thermophilic bacteria. Okay. Now ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये खुद ही इतने हॉट एनवायरनमेंट पे रहते हैं कि देयर एंजाइम्स आर बाउंड to work at high temperatures, and their enzymes can tolerate up temperatures up to 80 to 90 degrees Celsius. And an example of such a highly heat stable enzyme is Taq polymerase. ये एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. क्लियर? Which is Taq aquaticus, Thermus aquaticus, I'm sorry. Now, what is the nature of enzyme? Most of the enzymes are protein, okay? Exception, ribozymes. Ribozyme में RNA behaves like a कैटलिस्ट, यानी राइबोजाइम्स आर नथिंग बट आरएनएस. दूसरा है राइबोन्यूक्लियस, बट सारे के सारे राइबोन्यूक्लियस नॉन प्रोटीन नहीं होते. राइबोन्यूक्लियस एंजाइम्स इज अ नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ राइबोन्यूक्लियसेस एंजाइम. इट हैज मेनी टाइप्स. उसमें से राइबोन्यूक्लियस पी इज द वन विच इज नॉन प्रोटीन. आपके बुक में राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस दिया हुआ है, बट उन्होंने राइबोन्यूक्लियस के बारे में पूरा सच नहीं कहा, हाफ सच कहा है. सो दिस इज द ओनली राइबोन्यूक्लियस दैट इज नॉन प्रोटीन. क्लियर? नाउ मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स अगर प्रोटीनेशियस नेचर है तो उनका भी एक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा, उस प्रोटीन का होगा, राइट? Now here students, if you see on your screen, आपके बुक में लिखा हुआ है all enzymes are proteins. No, ये नहीं. One can depict an enzyme by a line diagram. An enzyme, like any protein, has primary structure, that is amino acid sequence of the protein. An enzyme, like any protein, has the secondary and tertiary structure. लेकिन अभी अभी हमने प्रोटीन्स में पढ़ा था कि प्रोटीन हैज टू हैव एटलीस्ट अ टर्शियरी स्ट्रक्चर टू फंक्शन एज एंजाइम. तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी की बात क्यों कही जा रही है? नाउ फॉर एनीथिंग दैट इज टर्शियरी, वो यूं फोल्ड करके अपने लिए 3D स्ट्रक्चर बनाया, राइट? बट एट द बिगिनिंग व्हाट वाज द प्रोटीन? हाउ डिड द प्रोटीन ओरिजिनेट? It is nothing, or it was nothing but a linear chain of amino acids. Primary था, then it either coiled or it became beta pleated sheet, right? फिर इससे ये secondary बना और ये जाके यूं fold करके they made the tertiary structure, and from here it begins to do the job of a protein. Do the job of an enzyme. Now, when a secondary protein folds like this, it forms many crevices या many pockets. जैसे ये हो गया. Such pockets या such crevices are called active sites. Active site for who? Site for the substrate. Clear? यानी सबस्ट्रेट आके यहीं पे लगते हैं एंड द रिएक्शन इज कैरीड फॉरवर्ड. क्लियर?
Next property of your enzyme will be their catalytic nature. Now, enzymes, they only do the catalysis, they never start a reaction. Reaction शुरू होते, they only enhance the rate of the reaction. Okay, that is, they only catalyze it. नेक्स्ट जिस प्रॉपर्टी की बात करेंगे दैट इज टर्न ओवर ऑफ एंजाइम या टर्न ओवर नंबर. Turnover number is the number of product molecules formed. Per unit time. Clear? Higher the number of turnover number, more efficient the enzyme is. Lower the number of turnover number, less efficient the enzyme is. फिर है एंजाइम रिमेन्स अनऑल्टर्ड. यानी ये एक एंजाइम है, इससे आके एक सबस्ट्रेट लगता है, ये यहां पे चेंज होता है, प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, दे आर रिलीज्ड बट द एंजाइम रिमेन्स अनऑल्टर्ड या अनचेंज्ड इन स्ट्रक्चर. क्लियर? then they are highly specific. एक तरह का एंजाइम एक ही तरह का काम करेगा और वो एंजाइम जो काम करेगा वो बहुत सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है. एक एंजाइम से हम 10 सबस्ट्रेट का काम नहीं करा सकते. ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम अब तक हमने जो डिस्कस किया, दिस इज अ लिस्ट ऑफ द सेम. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. क्लियर? Now, enzymes are catalyzing what? They are catalyzing the chemical reactions in a living organism. Reactions या changes कितने तरीके के होते हैं in a living organism? They are of two types. एक तरफ है physical, दूसरा तरफ है chemical. Right? Physical change वो change है, it can occur, the change can occur, that occurs either in the, physical changes are the changes that occur in the state of the molecule. जैसे water से ice का हो जाना, or it causes a change in the shape. Without breaking any bond. Okay? वहीं पे chemical changes वो है which where bonds are broken. New bonds are formed. Formed. A bonds broken, new bonds formed मतलब substrate से new products are formed. Clear? Now enzymes ये chemical changes करते कैसे हैं, कराते कैसे, उनका efficiency या उनका speed कैसे बढ़ाते हैं, आगे हम अब वो देखेंगे. Okay? Okay, वो देखने से पहले chemical reactions. Now, chemical reactions also can be of two types. Inorganic as well as organic. Inorganic का example आपके बुक का ही है. Barium hydroxide plus hydro H2SO4 sulfuric acid. Barium sulfate plus H2O. ये हो गया इनऑर्गेनिक. और ऑर्गेनिक रिएक्शन का अगर एग्जाम्पल देखें, देयर आर मेनी, बट सुक्रोज in presence of the enzyme sucrase and a molecule of water,
breaks down into glucose and fructose. Clear? Now let us come to rate of the reaction. Of product formed in unit amount of time, right? dp dt. अब rate of the reaction में if the reaction has a direction which in almost all the cases have, हम जानते हैं कि reaction is proceeding in this way, इस तरफ substrate है, इस तरफ product है, we call rate the velocity बन जाता है. Clear? Now another important thing is ये जो है, if there is only one molecule या one compound that is participating in the reaction, we call it substrate. और वहीं पे अगर more than one molecule है, two or more than two types of compounds are coming and participating in a reaction, that is when we call them the reactants. और finished product जो होता है उसको product या एंड प्रोडक्ट कहा जाता है. क्लियर? अब एंजाइम्स करते क्या है? दे कैटालाइज दीज केमिकल रिएक्शंस. तो आपको क्या लगता है, अगर एंजाइम्स नहीं होते, अगर कैटालाइसिस नहीं होता, तो क्या केमिकल रिएक्शंस नहीं होते? केमिकल रिएक्शंस तब भी होते. फर्क यह है कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन तब बहुत कम होता. और इसको और इसको समझने के लिए हम ये रिएक्शन ले रहे हैं वेर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस टू गिव राइज टू कार्बोनिक एसिड. ये कार्बोनिक एसिड है और हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन 3 वेज ऑफ विच 1 वे इज दिस. और ये जो बाइंडिंग है ये रिवर्सिबल है. ये कार्बोनिक एसिड बन के लंग्स पे आते हैं, फिर लंग्स तक आते हैं, फिर वहां डिसोसिएट करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाता है. ओके, तो ये जो है देयर इज नो एंजाइम, सो दिस इज एन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन. और अनकैटालाइज्ड रिएक्शन जब ये होता है, इट प्रोड्यूसेस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड पर आवर. ओके, जैसे ही इस रिएक्शन को कैटालाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यही स्पीड बढ़ के तब इट बिकम्स 6 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड पर सेकेंड. यानी देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 10 मिलियन टाइम्स. तो इसी एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि हाउ एफिशिएंट दीज एंजाइम्स आर एंड हाउ मच दे कैन स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस. ओके, आ रहा है समझ? नाउ ये जो रिएक्शन है वी सी इट इज ओनली अ 1 स्टेप रिएक्शन. बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर कुछ 1 स्टेप नहीं होता. देयर आर मेनी रिएक्शंस विच अकर इन मल्टी स्टेप and each step is catalyzed by same
or different enzyme, या you can say group of enzymes. Such a multi-step reaction is called a metabolic pathway. Okay? Very common example of metabolic pathway is glycolysis. Occurs universally in all living organisms. Glycolysis में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है. One molecule of glucose is broken into two molecules of pyruvate. Now, metabolic pathway का जो end product होता है, we get an end product. The reactions, the multi-step reactions are over. अगर इसी end product पे there are some additional steps occur, we get different products. या different end products. और ये additional steps जो होते हैं, many times they are dependent on the type of environment where the reactions are taking place. और इसी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. Write this one. इसी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. Write this one. Now glucose to pyruvic acid. This is a metabolic pathway. ये end product है, the pyruvic acid. अब conditions if they are anaerobic, जैसे अगर हमारे ह्यूमन मसल सेल में when we are doing vigorous exercise and there is less oxygen, it forms 2 lactic acid. ये हो गया one of the product that it can form in anaerobic condition, while the same pyruvic acid in yeast, it ferments to give rise to ethanol and carbon dioxide. Clear? But during normal respiration, in aerobic respiration, pyruvic acid is broken down aerobically to give rise to carbon dioxide and hydrogen. यानी मेटाबॉलिक पाथवे यहां तक था, कंडीशंस अलग अलग हुए, अलग अलग एक दो और रिएक्शंस हुए, एंड वी एंड अप विथ मेनी डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स. ऑल डन? आया समझ में यहां तक? अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये एंजाइम्स जो है, हाउ डू दे एक्ट, हाउ डू दे ब्रिंग इन सच हाई स्पीड रिएक्शंस. ओके? Now, student, let us assume this is an enzyme. Okay? ये इसका active site है. So, this is an enzyme and we have a substrate. ये substrate, it diffuses and it moves till the active site and it binds. Result क्या होता है? इसको मैं थोड़ा ऐसा 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 कर दूं, then it will become easy to understand. ये E, ये S, we have a ES complex. Enzyme substrate complex. Now ये complex जो है, this is transient. Transient मतलब क्या? ये change होने वाला है. It is temporary, it is short lived. Clear? और ये जो substrate bind हुआ है, now it changes its structure into a transitional structure stage.
आ रहा है समझ में? This changes to transition state structure. Transition state structure जैसे it forms, it is an unstable substrate now. Energy level इसका high है, bonds are weak. Now the enzyme brings in the changes, breaks the bond, और ये ES complex से अब ये EP product complex हो जाता है. Products are formed. वो एक्टिव साइट पे ही बाउंड है. Once the products are formed, the enzyme gives out the products and the enzyme remains unchanged. Unchanged, unaltered. इसका कोई चेंज नहीं होता. It does not get used up. आया समझ में? Now, ये तो हो गया how the enzyme works, how it attaches with the substrate, and how this transition state structure is formed, bonds are broken, products formed and products released. But then how do they speed up? Speed कैसे बढ़ाते हैं? Now, speed कैसे बढ़ाते हैं ये समझते हैं हम इस ग्राफ से. Now we have a graph, the y-axis represents the potential energy of substrate. क्या है potential energy? Any molecule, it is going to have some energy trapped within itself, hidden energy, right? उसी को ही potential energy कहा जाता है. And the x-axis here shows the progress of the reaction. क्लियर? अब यहां पे लेट अस अज्यूम कि जो सबस्ट्रेट हमने लिया है उसका पोटेंशियल एनर्जी समवेयर हियर. बिल्कुल जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला तो कुछ हो नहीं सकता, राइट? हर मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ अपना एनर्जी होता है. नाउ उसका पोटेंशियल एनर्जी का ये द लाइन रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट. नाउ फॉर एनी मॉलिक्यूल to undergo a chemical reaction, it has to get some form of some energy to reach a heightened state of energy which is called the activation energy. जब तक उसका एनर्जी लेवल पोटेंशियल से उठ के एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल तक नहीं जाता वो आगे रिएक्ट नहीं कर पाएंगे. ओके? जैसे हम जब बहुत गुस्से में होते हैं तो हम बहुत रिएक्ट करते हैं. अभी नॉर्मल मूड है, कोई आगे कुछ बात कहे तो वी विल नॉट रिएक्ट वेरी फास्ट, टाइम लगेगा. बट गुस्से में है, किसी ने कुछ कहा तो हम भी मुंह तोड़ देंगे, फटाक फटाक होता है, रिएक्शंस आते रहते हैं. वही बात इस सबस्ट्रेट पे भी है. नाउ without any enzyme, do you see the energy level difference? एक्टिवेशन एनर्जी इसका यहां है और पोटेंशियल एनर्जी लेवल इसका यहां. ओके? और जैसे ही एक एंजाइम comes, it lowers this activation energy. So now the substrate has to go up only till this much. तो do you see कि कितना कम हो जाता है एक्टिवेशन एनर्जी? अब एक्टिवेशन एनर्जी जब कम होता है, द ट्रेवल टाइम और द ट्रांजिशन टाइम बिटवीन सबस्ट्रेट एट द पोटेंशियल एनर्जी लेवल एंड एक्टिवेशन एनर्जी लेवल आल्सो रिड्यूसेस. और जैसे ही दिस रिड्यूसेस द स्पीड इंक्रीजेस. दैट इज हाउ एंजाइम्स स्पीड अप द रिएक्शंस और कॉज रिएक्शंस एट हाई वेलोसिटी. क्लियर? ये तो हो गया how high velocity is achieved. Now,
From this we can understand two more things. यहां पे if you see substrate energy here, product is formed here, यानी product का potential energy is lower than substrate, or you can say the substrate has a potential energy higher than that of product. अब जिस रिएक्शन में हमें ये देखने को मिलता है, दैट रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो कौन से रिएक्शंस है? विच गिव्स आउट हीट. ऑन द कॉन्ट्ररी, ये सबस्ट्रेट है. अगर ये कर्व कुछ ऐसा जाता, प्रोडक्ट अगर यहां फॉर्म होता, तो सबस्ट्रेट का एनर्जी लेस देन द प्रोडक्ट का एनर्जी होता, एंड दैट वुड हैव मेंट endothermic reactions. And that means what? Heat needs to be given. All clear students? आ रहा है समझ में? Now, इसके बाद let us look at the factors which affect the working of the enzyme. फिर हम आगे एंजाइम जो ये हाउ द सबस्ट्रेट फिट्स, हाउ इट वर्क्स, उस को लेके जो दो हाइपोथेसिस है वो देखेंगे. ओके, बट फर्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स. नाउ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एंजाइम, देयर आर थ्री मेन फैक्टर्स. एक है टेम्परेचर, पीएच एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. इन तीन चीजों को हम आप ही के बुक के दिए हुए ग्राफ से समझते हैं. ओके, नाउ ये फर्स्ट वाला जो है, दिस शोज द फर्स्ट टू, दे शो द इफेक्ट ऑफ पीएच एंड टेम्परेचर. यहां पे द वाई एक्सिस शोज द एंजाइम एक्टिविटी और एक्स एक्सिस द पीएच एंड द टेम्परेचर. नाउ फॉर पीएच, as the pH increases, the enzyme activity also increases till it reaches a point. और टेम्परेचर में भी हम वही देखते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, the enzyme activity also increases till it reaches a point. अब ये जो पॉइंट है, at this point we see maximum activity of the enzyme, and such the point is called optimum pH in case of pH and optimum temperature in case of temperature. Sorry, temp. Okay. यानी optimum pH or optimum temperatures are the points at which the enzyme shows the maximum activity. Beyond this, the activity declines. And ahead of this also the activity is reduced. Now, temperature को लेके यहां पे एक बात बोलने वाली हूं. At the beginning of this chapter, आपके बुक में लिखा हुआ है that for enzyme there is a general rule of thumb that for every increase of 10 degrees Celsius or every decrease of 10 degrees Celsius, the enzyme activity either doubles or reduces by half. Now, every increase by 10 degrees Celsius will hold good only till the optimum point. उसके बाद नहीं होगा. उसके बाद आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, enzyme will become denatured and it will not show any increase. And for this decrease in temperature, anything below the optimal point ही ये काम करेगा. क्लियर? ऑप्टिमल पॉइंट से आप टेम्परेचर कमाते जाएंगे, एक्टिविटी विल फॉर एवरी 10 डिग्रीज एक्टिविटी विल कीप रिड्यूसिंग बाय हाफ. डन विथ टू फैक्टर्स, पीएच एंड टेम्परेचर. अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर में, विच इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और वो भी हम इसी ग्राफ से समझेंगे. The y-axis, it shows velocity of the reaction v,
और ये एक्स एक्सिस इट शोज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। V ऊपर जा रहा है, दिस इज द V मैक्स। तो जैसे जैसे इफ यू सी दिस कर्व, जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ता है, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस टिल अ पॉइंट। उसके बाद आप कितना भी सबस्ट्रेट दे दे, यू विल सी दैट इट हैज बिकम फ्लैट, यानी वेलोसिटी उसका और बढ़ने वाला नहीं है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप कितना भी सबस्ट्रेट दे दे, एंजाइम्स आर फ्यू, और ये एंजाइम्स एंजाइम्स अब सैचुरेटेड हो गए हैं, अब इन पे कोई एक्टिव साइट बचा नहीं, तो आप इसके ऊपर से और भी सबस्ट्रेट दे दीजिए। जब ये पोजीशन सारे के सारे भर गए हैं, ये कंसंट्रेशन स्पीड अप नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट विच इज कॉल्ड Km या माइकलिस कांस्टेंट। माइकलिस कांस्टेंट वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है at which half the velocity is achieved. Now, ये either it can move this way, this means Km moves towards left, or it may move towards right, यानी the Michaelis constant move towards right. If the Km move towards left, उसका क्या मतलब होता है कि थोड़े से ही कंसंट्रेशन में हाई, मतलब हाफ द वेलोसिटी बहुत जल्दी पा लिया जाता है। What does that indicate? That indicates that the enzyme has a very high affinity for the substrate. बहुत प्यार है उनमें। ओके, और वहीं पे if we see कि the Km it moves or it shifts to the right, यानी concentration of substrate बहुत ज्यादा चाहिए to achieve this V2 Vmax by 2 वैल्यू, दिस मीन्स कि एफिनिटी कम है, यानी वो एंजाइम काम तो करता है पर थोड़ा सा खड़ूस होकर, उसको वो सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा पसंद नहीं, एज इफ वो सबस्ट्रेट उस पर थोप दिया गया। राइट, बस यही है ऑल अबाउट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी। आया बच्चों समझ में? अगर आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे देना। नाउ there are two models given to explain the functioning of enzymes. Actually, दो models दिए हुए, you can say two hypotheses. The first one is log and key hypothesis. This was given by Fisher in 1890. अकॉर्डिंग टू दिस, ये एक एंजाइम है, ये इसका एक्टिव साइट है, एंड द सबस्ट्रेट यानी स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट एंड दैट ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द एक्टिव साइट मैचेस जस्ट लाइक अ की विद अ की होल ऑफ इट्स लॉक। जैसे हर ताले को किसी भी चाबी से आप नहीं खोल सकते, देयर इज अ स्पेसिफिसिटी, द सेम थिंग अप्लाइज हियर। क्लियर सिमिलैरिटी इन द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द एक्टिव साइट एंड कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। दूसरा है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, given by Koshland in 1960. नाम पे ही छुपा हुआ है कि what does this hypothesis say? Now, hypothesis को explain करने से पहले I would like to give you the example of a hand glove. Hand glove कैसा सिकुड़ा हुआ सा होता है। अब मैं जैसे ही अपना हाथ उस पर डालूंगी, it fits to fit my hand in it, right? The same thing this hypothesis says कि एक एंजाइम का कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप कंफर्म्ड नहीं होता,
उसका शेप चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट व्हेन इट कम्स इन. The substrate as it comes and fits, it induces the change in the substrate. According to this hypothesis, एक एंजाइम के एक्टिव साइट पे, दिस इज द एक्टिव साइट, दो कंपोनेंट्स होते हैं. ऊपर की ओर ये है बट्रेसिंग कंपोनेंट और यहां पे होता है कैटालाइटिक कंपोनेंट. तो द मोमेंट सबस्ट्रेट कम्स, इट कम्स एंड फिट्स. ओके, जैसे ही फिट होता है, लाइक जैसे हमने हाथ अपना घुसा दिया ग्लव में, द ग्लव फिट्स इन. ये सबस्ट्रेट और ये बिल्कुल फिट हो गए हैं. नाउ द कैटालाइटिक साइट कम्स वेरी क्लोज टू द सबस्ट्रेट एंड इट शोज इट्स रिएक्शन. क्लियर? यही तो मॉडल्स है. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड स्टडी इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. यानी क्या है जिससे कि एंजाइम का एक्टिविटी इनहिबिट होता है. नाउ देयर कैन बी एक्चुअली 4 टाइप्स ऑफ इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, लेकिन आपके सिलेबस में खाली एक ही दिया हुआ है, विच इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. मैं बाकी 3 के बारे में थोड़ा थोड़ा बोल देती हूं, बिकॉज PYQ अगर आप करेंगे तो शायद आपको इसकी जरूरत पड़े. एक है रिवर्सिबल इनहिबिशन. रिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या होता है, दिस इज द एंजाइम, ये इसका एक्टिव साइट है, यहां पे कुछ न कुछ सबस्ट्रेट अदर देन द सबस्ट्रेट कम्स एंड बाइंड्स. ओके, और जैसे ही वो बाइंड करता है, एंजाइम देखता है ये बाइंड तो कर लिया, पर ये वो कंपाउंड नहीं है जो मुझे चाहिए. इट प्रिवेंट्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम. तो फिर इसे रिवर्सिबल क्यों कहा जाता है? द मोमेंट वी डाइल्यूट या वी ब्रेक दिस, और फिर से इसका एक्चुअल ओरिजिनल सबस्ट्रेट दे दे, तो इट कैन बिगिन इट्स एक्टिविटी. दस इट इज रिवर्सिबल इनहिबिशन. दूसरा है इरिवर्सिबल. इनहिबिशन, यहां पे होता क्या है, दिस इज द एंजाइम, द सबस्ट्रेट कम्स एंड बाइंड्स, सॉरी नॉट द सबस्ट्रेट, द फेक सबस्ट्रेट, द चोर सबस्ट्रेट, ओके, द प्रॉक्सी सबस्ट्रेट. बट जैसे अगर हम उस कॉम्प्लेक्स को तोड़ भी देते हैं और उसको रिलीज भी कर देते हैं, द एंजाइम कैनॉट रिगेन इट्स एक्टिविटी. और ये जो फेनोमेनन है, इट इज यूज्ड इन मेनी इंसेक्टिसाइड्स. इंसेक्टिसाइड्स में कुछ न्यूरोटॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं जो इंसेक्ट के उस एंजाइम्स में जाके यूं लग जाते हैं, लेकिन वो अगर हटा भी दिया जाए तो भी वो एंजाइम इंसेक्ट के काम नहीं कर पाते हैं एंड दे डाई. क्लियर? द थर्ड टाइप इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में होता क्या है, यही बात है कि ये एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट इसका एक ओरिजिनल सबस्ट्रेट होता है. ओके, लेट अस थिंक ये ओरिजिनल सबस्ट्रेट है. दूसरा ये है कि एक प्रॉक्सी सबस्ट्रेट या एक नकलची सबस्ट्रेट है. नाउ इस मिक्सचर पे ये भी है, ये भी है, ये आके इससे पहले लग जाता है, तो इसने वो एक्टिव साइट जैम कर दिया. जैम तो कर दिया, एंजाइम कहता है कि मैं तो खाली इस कंपाउंड के बॉन्ड्स ब्रेक कर पाता हूं, इसके एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर पाता हूं, ये मेरे काम का नहीं है. ओके, एंड दैट इज हाउ इट रिड्यूसेस द एंजाइम एक्टिविटी.
अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में होता क्या है, ये Km जो हमने अभी देखा था वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। आप कंसंट्रेट पे कंसंट्रेट देते जा रहे हैं, बट ये V2 को अचीव होने में काफी टाइम लग जाता है। ओके, नाउ एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज, मैं आपको मॉलिक्यूल्स दिखा के समझाती हूं। नाउ द एंजाइम इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। इसका हु इज द क्लाइंट या हु इज द सबस्ट्रेट, it is succinic acid या succinate. Now students please look carefully at the structure of succinate. ये एंजाइम succinic acid या succinate पे रिएक्ट करता है and it changes it to fumarate. क्लियर? यहीं पे दो और कंपाउंड्स हैं, वन इज मैलोनेट एंड अदर इज ऑक्सैलोएसीटेट. नाउ डू यू सी स्ट्रक्चरली ये कितने सिमिलर है? सिमिलर एनफ टू फिट इनटू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज. तो ये प्रॉक्सीज आके यहां फिट हो जाते हैं. एज अ रिजल्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज अपना काम नहीं कर पाते. अब ये जो है ये काफी कॉम्पिटिटिव होते हैं. सो व्हाट डू डू? दे compete with the actual substrate. ये उनसे पहले जाके बैठ जाते हैं, ब्लॉक कर जाते हैं और सही मॉलिक्यूल द एक्चुअल मॉलिक्यूल बाइंड नहीं कर पाते. द Km decreases and so does the turnover. Clear? Coming back to the fourth type is non-competitive inhibition. Now non-competitive inhibition में जाने से पहले one thing, ये सक्सिनेट वाला एग्जाम्पल जो दी हूं, देयर द बाइंडिंग इज रिवर्सिबल. यानी वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन तो करता है बट इट इज रिवर्सिबल एट द सेम टाइम. अगर उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को अगर उस कॉम्पिटिटिव मॉलिक्यूल को हटा दिया जाए, सबस्ट्रेट को वापस डाल दिया जाए, द एंजाइम विल कंटिन्यू विद इट्स एक्टिविटी. नाउ इन तीनों में गौर करने वाली बात यह है कि ये जो प्रॉक्सी मॉलिक्यूल होते हैं, their structure has to be very similar to the actual substrate so that they can fit in the active site. Please write it down. Non-competitive inhibition में क्या होता है? The competitive molecule binds to the enzyme at sites other than active site. अब आप पूछेंगे मैम एंजाइम में तो अब तक हमने खाली एक्टिव साइट ही पढ़ा है, ये कौन सा वाला साइट है? सो देयर आर सम एंजाइम्स called allosteric enzyme. वहां पे एक एक्टिव साइट होता है, एक रेगुलेटरी साइट होता है. सच एंजाइम्स आर कॉल्ड एलोस्टेरिक एंजाइम. बट सारे के सारे एंजाइम्स एलोस्टेरिक नहीं होते, सम एंजाइम्स आर एलोस्टेरिक. प्लीज कीप दिस इन माइंड. पीवाईक्यू में ये अगर बहुत पुराने क्वेश्चंस में आपको इससे रिलेटेड सवाल मिल सकता है. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इस कॉम्पिटिटिव मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इससे मिलना नहीं है क्योंकि इसको वहां लगना ही नहीं है, ये आके यहां लग जाता है, रास्ता ब्लॉक, चक्का जैम करके ये बैठा रहता है. सो द सबस्ट्रेट कैनॉट कम एंड इट इनहिबिट्स द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम. क्लियर? आया समझ में? लग रहा है इंटरेस्टिंग? अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स.
यहां पे दो बातें हैं, एक है क्लासिफिकेशन, दूसरा है नोमेनक्लेचर यानी नामकरण. तो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम मीन्स. नाउ एंजाइम क्लासिफाई कैसे होंगे, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंटरनेशनल यूनिट ऑफ बायोकेमिस्ट्री IUB 1961. And according to this system, the enzymes are divided into 6 major classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now each classes are divided into subclasses. यानी इसके 1, 2, 3 यूं होगा, right? And each of these subclasses, like this one, is divided into sub of subclasses. और फिर जाके इंडिविजुअल एंजाइम है. And to denote all these categories, each enzyme is given a 4-digit okay. The 4 digits where first digit represents the class, second the subclass, third the subclass and fourth the individual enzyme. Now अब जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे 6 classes are there. जैसे क्लासिफिकेशन में नंबर 1 पे हमेशा आपको ऑक्सीडो रिडक्टेसेस एंजाइम ही मिलेगा और 2 में ट्रांसफरेसेस. इट इज नॉट लाइक कि मेरे यहाँ 6 पॉइंट्स है तो मैं अपना नंबर अपने जैसे जैसे याद आता है ऊपर नीचे कर सकती हूँ. नो, दीज नंबर एंड दीज नेमिंग आर स्पेसिफिक. ओके, नाउ लेट अस सी द 6 classes of enzyme. First is oxidoreductases or dehydrogenases. These are the enzymes जो oxidation and reduction at the same time in the same reaction को catalyze करते हैं. And here we are talking of oxidation or reduction in terms of loss of electron or gain of protons. Thus the enzymes are also called dehydrogenases. Very interesting. आप बहुत अच्छे से इन क्लासेस और इन नाम को याद रख लीजिए, समझ लीजिए. आगे चल के जब ग्लाइकोलाइसिस करेंगे और क्रेब्स साइकिल, you know, if you understand these thing here very well, आपको एंजाइम्स के नाम बहुत आसानी से वहां याद हो जाएंगे. ओके, नाउ अंडर दिस कैटेगरी जो एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम्स के सफिक्स कैसे होंगे. डिहाइड्रोजेनेसेस, ऑक्सीडेसेस, रिडक्टेसेस, कैटालेस, पेरोक्सीडेस. क्लियर? रिएक्शन क्या है? वी हैव अ सबस्ट्रेट विच इज रिड्यूस्ड एंड अ सबस्ट्रेट विच इज ऑक्सीडाइज्ड. ये एंजाइम आके जो रिड्यूस था उसको ऑक्सीडाइज कर दिया और जो ऑक्सीडाइज था उसको रिड्यूस कर दिया. यानी जो रिड्यूस था उस पर जाके या तो फिर उससे इलेक्ट्रॉन्स चुरा ले या उस पर हाइड्रोजन डाल दे एंड वाइस वर्सा. क्लियर? फिर है ट्रांसफरेज. दे ट्रांसफर स्पेसिफिक ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर. यहां पे एग्जाम्पल है ट्रांस अमाइनेज. अब ट्रांस अमाइनेज एंजाइम आपको जहां भी मिलेगा यू विल बी एश्योर्ड कि एक एमिनो ग्रुप ट्रांसफर होने वाला है. ट्रांस अमाइनेज आपके सिलेबस में इतना एप्लीकेशन नहीं है, बट काइनेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम. एंड नेक्स्ट 2 चैप्टर दूसरे आई मीन इन द रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस से ही आपको काइनेज एंजाइम बार बार सुनने को मिलेगा. काइनेज वो ट्रांसफरेज ग्रुप ऑफ एंजाइम है विच इज एसोसिएटेड विथ फॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या है? सिंपल मीनिंग ऑफ फॉस्फोराइलेशन इज एडिशन ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप. ये एडिशन अगर यूं ही सबस्ट्रेट लेवल पे हो रहा है जहां ना सनलाइट है ना कोई ऑक्सीजन है, इट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. अगर वो सनलाइट के प्रेजेंस पे हो रहा है, लाइट रिएक्शन पे हो रहा है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, तब उसको कहा जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन. अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन पे हो रहा है देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन. ओके, so kinase is the enzyme that is associated with substrate level phosphorylation. Glycolysis में kinase आने ही आने वाला है. Okay, now
जैसे यहां पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पे दिस इज द सबस्ट्रेट, द ग्रुप G इज अटैच्ड टू S, और यहां पे दूसरा सबस्ट्रेट है, इसने इसको यहां लगा दो, इसको आजाद कर दिया। एग्जाम्पल ग्लूकोज प्लस एटीपी, ये एटीपी के फॉस्फेट को लेके ग्लूकोज पे लगाने वाला है। एंड हु इज द एंजाइम? हेक्सोकाइनेज। नाउ रिमेंबर, हेक्सो रेफर्स टू द 6 मेंबर्ड कार्बन। बहुत जगह आपको ग्लूकोकाइनेज भी मिल सकता है, दैट इज ऑल्सो राइट। ओके, काइनेज वो एंजाइम है जो फॉस्फोराइलेट करने वाला है। तो उसने एटीपी को एडीपी बना दिया और ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे जाके फॉस्फेट को लगा दिया। डन। नंबर 3 या द थर्ड क्लास ऑफ एंजाइम इज हाइड्रोलेसिस, यानी यहां हम कुछ तोड़ने की बात कर रहे हैं, और तोड़ने की बात करें विद द एडिशन ऑफ वाटर, दस द नेम हाइड्रो। Examples are hydrolysis of ester, ether, peptide, glycosidic, CCCS, PN bonds and so on. Now students, हमने अभी अभी लिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स पे देखा है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, पेप्टाइड एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब जब ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं बाय कंडेंसेशन, अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज एलिमिनेटेड, और वही पानी लाके इन पे डाल के इनको तोड़ा जा रहा है। And usually the protein under this class have the names like proteases, amylases, lipases, aces. Okay. Now, example is sucrose plus water in presence of the enzyme sucrase या invertase gives rise to glucose and fructose. Okay. Then lyases. Lyases मतलब सिर्फ तोड़ना, no पानी involved here. Cleavage the substrate विदाउट द यूज ऑफ वाटर, यहां पे, और जिस सबस्ट्रेट को करता है वहां पे ये डबल बॉन्ड फॉर्म करा के चले जाते हैं। जैसे ये एक सबस्ट्रेट है, इन पे लगा हुआ ये ग्रुप है, इस ग्रुप को यहां से काट दिया, अ बॉन्ड इज फॉर्म एंड देयर ये जो बॉन्ड है ये कंपेंसेट होगा कैसे, तो यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्म करा दिया। क्लियर? And the enzymes that we get under this class names are aldolase, decarboxylase and hydrase. जैसे fructose 1,6 बिसफॉस्फेट, यानी एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल है, उसके फर्स्ट और 6th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है। Aldolase comes, it reacts and it breaks the compound into 2,3 carbon compound. Dihydroxy acetone phosphate, glycerol dehyde phosphate. Clear? ये ग्लाइकोलाइसिस का ही एक स्टेप है। नाउ isomerases. These enzymes they catalyze the rearrangement of the molecular structure to form isomers. यानी फॉर्मूला वही रहेगा, the conformation may change, the spatial arrangement of the molecules may change. Now the conversions, they may either be structural, optical or geometric. ये पॉइंट जो है ये मैं आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे रही हूं, एज सच एनसीईआरटी पे ये है नहीं, बट समझ लीजिए जब समझा रही हूं। जैसे यू नो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर व्हाट, दे आर आइसोमर्स, एक एल्डोलेज है, दूसरा कीटोज है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी ग्लूकोज विद द फॉस्फेट एट द 6th पोजीशन, आइसोमरेस एंजाइम आता है, फॉस्फेट को वैसा ही रख देता है, ग्लूकोज जो एक एल्डोलेज था उसमें कुछ आइसोमरिक चेंज लाके उसको फ्रुक्टोज एक कीटोज बना देता है। ओके, फिर है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट म्यूटेज। व्हाट इट डज, ये आइसोमर अलग से बना नहीं रहा है, दे ओनली ब्रिंग अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ग्रुप, उसी मॉलिक्यूल को वैसे ही रख देता है। फॉस्फेट जो पहले फर्स्ट पोजीशन पे था, सॉरी 6 पे, अब वो फर्स्ट पे है। इंटरेस्टिंग इज द नेक्स्ट वन, ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट, ये एक 5 कार्बन कीटोज शुगर है। एपिमरेज comes and reacts and it converts into ribulose 5 phosphate. एपिमर ऑप्टिकल, यानी एक कार्बन पे इसका डिफरेंस था इन ओरिएंटेशन ऑफ द अल्कोहल एंड द हाइड्रोजन,
उस कार्बन को ही थोड़ा सा चेंज कर देता है, राइट? दस ऑप्टिकल चेंज हो जाता है. नाउ जियोमेट्रिक चेंज इज समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, बट आप जस्ट याद रखिए मैलिएट सिस फॉर्म से मैलिएट आइसोमरेज फ्यूमेरेट फॉर्म कराता है, यानी इट वर्क्स अराउंड द डबल बॉन्ड ऑफ दैट मॉलिक्यूल. जैसे मैं दिखा दूं, यहां पे सी मैलेट यहां पे है, मैलेट के दो एसिड ग्रुप एक ही तरफ ऑफ द डबल बॉन्ड है. द एंजाइम कम्स एंड इट जस्ट चेंजेस द डायरेक्शन. साथ साथ मत बैठना, बातें करोगे तो इनके पोजीशन को चेंज कर देना. ओके, नाउ द सिक्स्थ टाइप, लाइगेज. लाइगेज यानी जुड़ना. इट जॉइंट्स टू सब्सटेंसेस and forms a large molecule. And how does it join? By covalent bonding. और इस कोवलेंट बॉन्डिंग से बच्चों एक बात याद आया कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जब हम पढ़ रहे थे, द बॉन्डिंग इज रिवर्सिबल, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज वाला एग्जाम्पल में, एंड द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द प्रॉक्सी कंपाउंड is covalent bond. Please remember that it forms covalent bond at the active site. Okay. Now ligases, they form large molecules such as किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म कराते हैं? CCCSPOCN. Example, and they use ATP. Okay, they example is these two enzymes. आप अगले चैप्टर में इन एंजाइम्स का एग्जाम्पल और रिएक्शन देखेंगे. Now here is a table of the class and reaction type of the enzymes. Students, you may take a screenshot of this part. Handy note बन जाएगा आपके लिए. ओके, मैं ये पूरा आपको मेरे नोट से ही पढ़ा रही हूं. नाउ लेट अस कम टू नोमेनक्लेचर. क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, देयर वर टू पार्ट्स. क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, डू यू सी? नाउ नोमेनक्लेचर रूल सेज कि हर एंजाइम का अब सफिक्स एज होना है. Exceptions are the old names such as pepsin, trypsin, thiolin. आपने डाइजेशन वाले चैप्टर क्लास 9 में शायद पढ़ा है. ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टायलिन, राइट? व्हाट इज टायलिन? अमाइलेज वाले एंजाइम को, सलाइवरी अमाइलेज को टायलिन कहा जाता है. In modern systems, the enzymes are named after the substrate acted upon, जैसे sucrase, lipase, lipid, and the chemical reaction that the kind of chemical reaction that they are catalyzing. जैसे dehydrogenase, आपको कहीं मिलेगा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, यानी आप समझ लेना वो उस अल्कोहल के और उसके साथ जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वहां पे करवा रहा है. क्लियर? फिर जैसे हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज को कहीं कहीं पे आप ग्लूको या फ्रुक्टोकाइनेज भी देख सकते हैं. हेक्सो मीन्स व्हाट? 6 कार्बन मेंबर, काइनेज मतलब फॉस्फोराइलेशन. तो जब भी ऐसा एंजाइम आएगा, यू विल नो कि इस एंजाइम का काम फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ना है. क्लियर? ग्रुप नेम्स आर ऑफन प्रिसीडेड बाय द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट. सी, जो बात मैं कह दी, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, यानी ये सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट का ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन करने वाला है. डीएनए पॉलीमरेज, जैसे डीएनए पॉलीमरेज नाम से आपको क्या पता चलेगा कि ये डीएनए का पॉलीमर सिंथेसाइज में हेल्प कर रहा है. ओके, तो नाम पे ही इसका फंक्शन काफी हद तक छुपा हुआ होता है. Now the last leg of enzyme which is cofactors. बहुत बड़ा है ये enzyme. Now not all but some, or you can say many. Please write it, but not all enzymes have a non-proteinaceous component with them. The non-protein part is called cofactor. It is something like a chef and the jugadi of the chef. Okay. So the protein part
is called the apoenzyme, which is the inactive protein portion, and non-protein part is called cofactor, और इन दोनों को मिला के होलो एंजाइम. ओके, तो ये कोफैक्टर्स के क्या क्या टाइप्स है वो देख लेते हैं. The cofactors have three different types: prosthetic groups, coenzyme, and metal ions. Prosthetic and coenzyme are organic. ये तो इनऑर्गेनिक हो गया मेटल आयंस. नाउ प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? दे आर वेरी टाइटली बाउंड एंड ऑल द टाइम बाउंड टू द एंजाइम. जैसे अगर मैं बोलूं प्रोस्थेटिक डेंचर, तो जैसे वो बहुत टाइटली मेरे डेंटल लाइन पे लगा हुआ होगा. सेम विद दिस. ओके, एंड दिस प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक. हीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप. ये हीम जो है हमारे हीमोग्लोबिन में मिलता है. इट इज द आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जिससे ग्लोबिन चेन्स आके लगते हैं. अब वही वाला हीम मॉलिक्यूल हमें पेरोक्सीडेसेस एंड कैटालिसिस एंजाइम में देखने को मिलता है. और इन एंजाइम्स का काम क्या है? दे कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन. क्लियर? So prosthetic group is something like a 24-hour service. Coenzyme, they are also associated with the enzyme. They are also organic but only for a short time. यानी इनका association transient है, temporary है. So you can say कि they are on call. Clear? Now coenzymes are, good number of coenzymes are vitamin या vitamin derived. Example NAD, NADP, they contain the vitamin niacin, and one coenzyme may take part in many reactions. अब जो बंदा ऑन कॉल होगा, जैसे मेरे घर में अगर कोई मेड आ रही है काम करने को, वो मेरे घर का काम करके अगले घर में भी काम कर लेगी. सेम विद दिस कोएंजाइम, ऑन कॉल, इस रिएक्शन में NAD आया, अपना काम किया, फिर अगले किसी और रिएक्शन में जाके अपना काम करेगी. Third is the inorganic component, which is metal ion. Metal ion में the metals form coordination bond with the side chains of the active site. Example इसका है zinc in the proteolytic enzyme carboxypeptidase. Okay. Now जो होलो एंजाइम होते हैं, यानी जो एंजाइम्स में कोफैक्टर होते हैं, they cannot work without the cofactors. आप cofactor को हटा देंगे, catalytic activity will be lost. Means they are very heavily dependent on their helpers. Clear? Done with the structure and components of enzyme. यहां तक का वीडियो आपको कैसा लगा? Please let me know in the comment section. Now let us see some very basic MCQs. Essential component of many coenzymes are carbohydrates, proteins, nucleic acids, vitamins. ऊपर में से कुछ नहीं है, it is going to be vitamin. हमने अभी पढ़ा है, right? And हमने किसका एग्जाम्पल देखा? niacin का. Select the option that is not correct with respect to enzyme action. Adding with respect to enzyme action, adding excess succinate does not reverse malonate inhibition of succinate dehydrogenase. A non-competitive inhibitor binds at a site distinct from the substrate binding site. Malonate is competitive inhibitor of succinate dehydrogenase. Substrate binds the enzyme at its active site. Select the option that is not correct. The correct answer is पहला वाला. Adding excess succinate does not reverse malonate. Okay, क्योंकि वो बहुत competitive होते हैं, इसीलिए तो नाम पे है competition. Succinate के कितने भी molecules डाल दो, लेकिन वो उससे पहले ही जाके seat occupy कर लेंगे. An allosteric inhibitor of an enzyme acts by binding to the substrate product catalytic site of the enzyme, non-catalytic allosteric site of the enzyme. Fourth option. Metabolic flux is regulated by. Flux means what? Movement. यानी metabolism हो रहा है. Enzyme, sugars, phospholipids, sterols. The correct answer is enzyme. Ribozymes are dash that behave like enzyme. Ribonucleic acid.
Option 2. The most abundant enzyme in the biosphere is collagen, trypsin, rubisco, insulin. The correct answer is rubisco. ये most abundant protein भी है और most abundant enzyme भी है. Under anaerobic condition in our body, pyruvic acid is converted to methyl alcohol, acetyl coenzyme, lactic acid, glycogen. Lactic acid. Organic compounds tightly bound to the apoenzyme are called prosthetic group. Tightly bound, prosthetic ही है, फिर भी दूसरे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. Apoenzyme, metal ions, coenzymes, prosthetic group. The non-protein part of an enzyme is known as non-protein. Apoenzyme, cofactor, inorganic catalyst, active site. Cofactor. Proteins that catalyze biochemical reactions in the living world are known as enzymes, hormones, antibodies, receptors, enzymes. Okay. So student, that was some questions, very basic questions regarding enzyme. और आपको ये enzyme वाला वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं? अगर अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो तो प्लीज गिव द वीडियो अ लाइक.